पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पीरियोडिक वेव फॉर्म्स के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एज आई ऑलवेज से बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर स्टडीइंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो इन केस ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म लेक्चर that whenever we shift या move from one domain to another domain and we wish to return back to the original domain, we need the inverse of a particular transform. In our case, through Laplace transform, the signal xt was converted into x of s. That means we were moving from time domain to s domain. In case we need to return back from the s domain to the time domain, then we need to perform inverse operation. Since we are studying Laplace transform, so we'll be dealing with inverse Laplace transform, right? So inverse Laplace transform will help me to move back from S domain to T domain. Fine. चलो देखते हैं कि कैसे अप्रोच होगा। xt का जब मैंने Laplace transform लिया तो I got x of s. Now अगर x of s का मैं inverse Laplace transform ले लूं तो I'll again get xt. Up, there must be a question in your mind, why the hell we converted t to s when we had to ultimately convert the final signal into t domain? See, in electronics and communication engineering, yeah, precisely in communication engineering, we need to change the characteristics of the signals during the course of transmission. At times, as per the requirement of the channel and as per the bandwidth constraint, we need to convert a signal into a different domain just in order to transmit it across the channel with minimum probability of error. So in that case, to minimize the error, yeah, precisely we can say to maximize the efficiency of the signal transmission, these sort of conversions are required. ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि just for the sake of increasing the complexity, I have converted t to s and then again I am converting it back to t. No, just in order to increase the efficiency of the communication system and to match the compatibilities of the transmission channels, we need to do these transforms. तो अगर मैं s domain पर आ चुका हूं और मुझे वापस से t domain पे आना है, the tool that I'll be using is inverse Laplace transform, right? चलो अब देखिए, before studying the concept, the topic, let us understand what the basic concept is. See, every Laplace transform can be written in the form of ns upon ds, where ns and ds are the numerator and the denominator polynomials respectively. The values of s for which ns is 0 are called the zeros of transmission. We'll be coming across, we'll be studying these concepts when we'll be dealing with stability. तो stability में we'll be dealing with this zeros and poles and details, but यहाँ पर since I'm using a polynomial, so it is important to understand how we'll be operating. The points at which the denominator polynomial becomes 0 are called poles. These poles and zeros play a very, very significant role in the stability analysis of a transfer function या of a communication system. अभी देखो, मान लेता हूं मैं एक x of s का वैल्यू लेता हूं, say this is s minus 1 into s minus 2 into s minus 3. This is a given problem and यहां से I need to determine the value of xt. Since I have to move from s domain to time domain, so I'll precisely be using inverse Laplace transform, right? चलो सबसे पहले लेट अस चेक आउट कि व्हाट आर दी पोल्स एंड जीरोस। अब यहां पर देखो s इज इक्वल टू 1 पे द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल बिकम 0, तो दिस इज योर 0. व्हाट आर द पोल्स? पोल्स आर द फर्स्ट पोल इज 0, द सेकेंड पोल इज 2 एंड द थर्ड पोल इज 3. सी, s इज इक्वल टू 0, दिस s कैन बी रिटन एज s माइनस 0. s माइनस 0 को 0 पुट करूंगा तो s विल बी 0. तो फर्स्ट पोल इज
S is equal to 0. Likewise, second pole is P2 is 2 and the third pole is 3. क्लियर है ना भाई? डिनोमिनेटर को अगर मुझे 0 पुट करना है तो मैं ds को अगर 0 पुट करूंगा तो s माइनस 2, s माइनस 3, ये तीनों 0 हो जाएंगे। तो तीनों ही कंडीशंस पॉसिबल है, या तो s 0 हो सकता है, या तो s 2 हो सकता है, या तो s 3 हो सकता है। तो यही तीनों मेरे पोल्स आ गए, ठीक है ना। अब लेट्स सी कि मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालूंगा। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का सबसे बेसिक तरीका है कि सबसे पहले मुझे अपने x ऑफ s को पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है, और वंस मैं उसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देता हूं, देन माय जॉब बिकम्स वेरी इजी। उसके बाद मैं सीधे लाप्लास का इनवर्स ले लूंगा। अब देखिए, एवरी प्रॉपर्टी, एवरी फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ फॉर्म द इनवर्स पेयर। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि e टू द पावर माइनस AT ut, इसका लाप्लास क्या था? 1 अपॉन s प्लस a। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1 अपॉन s प्लस a, इसका इनवर्स लाप्लास क्या है? तो दिस विल बी e टू द पावर माइनस AT। सबसे ज्यादा बच्चों हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा साइन AT का लाप्लास क्या था? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर मुझे कहीं इनवर्स में ऐसा दिख गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो मैं क्या लिखूंगा? दिस इज साइन t, राइट? क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही कॉस का, तो मैं फॉर्मूले यहां पर नहीं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले आई होप एंड विश कि अभी तक आपको याद हो गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, 3 केसेस मैं आपको बताऊंगा। 3 तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। केस 1 है आपका जब यू हैव गॉट सिंपल पोल्स, सिंपल पोल्स, ठीक है ना। सभी केसेस में मेरे को पोल्स ही एनालाइज करने हैं अगर मेरे पास सिंपल पोल्स हैं। सिंपल पोल्स का मतलब क्या हुआ? मेरा जो x ऑफ s है दैट विल बी काइंड ऑफ, मैं लिख सकता हूं दिस इज योर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल ns, और ds कैन बी रिटन एज, से मैं मान लेता हूं s प्लस p1, s प्लस p2, s प्लस p3। अगर नीचे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है या ऐसा फॉर्म दिया है जिसको फैक्टराइज किया जा सकता है, तो आपको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की बात करूं, आई होप, मैं बार बार कह रहा था रिवाइज पार्शियल फ्रैक्शंस, तो आपने अभी तक पार्शियल फ्रैक्शंस रिवाइज कर लिए होंगे, ठीक है ना। चलो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? k1 अपॉन s, दिस कैन बी k1 अपॉन s प्लस p1 प्लस k2 अपॉन s प्लस p2 प्लस k3 अपॉन s प्लस p3, ऐसा ही लिखूंगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। अब k1, k2 एंड k3, इसका वैल्यू अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीधे पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। नहीं आते हैं या भूल रहे हैं तो मैं आपको रेजिड्यू मेथड बता देता हूं, सीधे सीधे कैसे निकालना है। देखिए, k1 का वैल्यू होगा, ध्यान से फॉर्मूला नोट करेंगे, s प्लस p1 x ऑफ s एट s इज इक्वल टू माइनस p1। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए, देखिए ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले में लॉजिक वही यूज हुआ है जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करते थे, कुछ भी नया लॉजिक नहीं यूज हुआ है। ध्यान से देखिए, k1 को अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं? पूरे x ऑफ s को s प्लस p1 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। s प्लस p1 से पूरे x ऑफ s को मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या? k1 वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, k1 वाला पार्ट जो वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ऐसे ही k2 कितना आएगा? k2 विल बी s प्लस p2 इंटू x ऑफ s, कहां पे निकालूंगा? s इज इक्वल टू माइनस p2 पे, सॉरी, s इज इक्वल टू माइनस p2 पे। ऐसे ही k3 कितना होगा? k3 विल बी s प्लस p3 इंटू x ऑफ s, कहां पे निकालूंगा? s इज इक्वल टू माइनस p3 पे। क्लियर है? तो ऐसे मुझे k1, k2, k3 मिल जाएगा। एक बार मुझे k1, k2, k3 मिल गया तो उसके बाद मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज fs is given as fs is 2s plus 1 divided by s plus 1 s plus 2
एंड s+3। ठीक है ना, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। हम 3 तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल पोल्स, रिपीटेड पोल्स एंड कॉम्प्लेक्स पोल्स। ठीक है ना, यही 3 आपके सिलेबस में। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, k1 अपॉन s+1 प्लस k2 अपॉन s+2 प्लस k3 अपॉन s+3। अब k1 का वैल्यू कितना होगा, k1 का वैल्यू होगा s+1 इंटू fs, जब fs से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2s+1 इंटू s+1 s+2 s+3, कहां पर, s इज इक्वल टू -1 पे, तो दिस गेट्स कैंसल्ड। जब s इज इक्वल टू -1 रखूंगा तो ये आ जाएगा -2 + 1 इज -1, नीचे क्या आ जाएगा -1 + 2 इज 1 एंड दिस इज 2, तो दिस विल बी -1/2। तो आप देखो आपको k1 का वैल्यू मिल गया। ऐसे ही k2 का वैल्यू क्या होगा, k2 का वैल्यू होगा s+2 इंटू 2s+1 डिवाइडेड बाई s+1 s+2 एंड s+3। s+2 गेट्स कैंसिल्ड, ये वैल्यू मुझे निकालनी s इज इक्वल टू -2 पे, x इज इक्वल टू -2 पे निकालनी है, तो -4 + 1 इज -3। यहां पर कितना आएगा बच्चों, -2 + 1 इज -1 एंड -2 + 3 इज +1, -1 इंटू +1 इज -1, तो दिस माइनस गेट्स कैंसिल्ड एंड यू विल गेट 3, राइट। तो दिस इज k1 एंड k2। ऐसे ही आप k3 भी निकाल सकते हो। k3 का वैल्यू बच्चों कितना आएगा, k3 का वैल्यू आ जाएगा s+3 इंटू x ऑफ s एट s इज इक्वल टू -3। इसको निकाल लीजिएगा, मैं सीधे बता देता हूं कितना आएगा, या आप खुद ही चेक कर सकते हो। s इज इक्वल टू -3 रखोगे तो -6 + 1 इज -5, यहां पर आ जाएगा -2 एंड +1, -2 एंड -1 इज -1, दिस विल बी -5/2। क्लियर है। जब जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आप खुद ये डायरेक्टली निकालने लगोगे, इट्स नॉट अ बिग डील। अब देखो f ऑफ s को मैं कैसे लिख सकता हूं, f ऑफ s कैन बी रिटन एज, k1 का वैल्यू है -1/2, नीचे कितना है s+1, k2 का वैल्यू है 3, नीचे कितना है s+2, k3 का वैल्यू है -5/2, नीचे कितना है s+3। अब मेरे पास f ऑफ s आ गया है, और बच्चों मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था f, या सॉरी मैं x लेके चल रहा हूं, मुझे निकालना क्या था, f ऑफ t। तो f ऑफ t इज लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s, तो इसका लाप्लास इनवर्स निकालूंगा तो -1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1। मैं इस क्वेश्चन में डिटेल में सब लिख रहा हूं, इसके बाद आप खुद ही करने लग जाओगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2, यहां पर मुझे लिखना चाहिए -5/2, दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+3, राइट। क्या आएगा, दिस विल बी -1/2 e टू द पावर -t। अब देखिए e टू द पावर -t का लाप्लास होता है 1/s+a, दिस विल बी 3 e टू द पावर -2t, -5/2 e टू द पावर -3t। तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड व्हेन वी हैव सिंपल पोल्स। देखो करना मुझे हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन ही है। ये रेजिड्यू मेथड मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि स्टेबिलिटी में यूज होगा, और अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है, जैसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल पोल है। आगे मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा थ्रू डिफरेंशिएशन, जिससे आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट बच जाएगा। बट इन केस आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो यू कैन प्रोसीड थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन एज वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम। फाइन, चलिए अब देखते हैं क्या होगा अगर मेरे पास रिपीटेड पोल्स आ जाए। नेक्स्ट फॉर्म इज जब मेरे पास रिपीटेड पोल्स हों। रिपीटेड पोल्स देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में आप देख चुके हैं, मान लीजिए आपके पास होता है 1/x+a का होल स्क्वायर इंटू x+b। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या करते थे, 1/x+a प्लस b/x+a का होल स्क्वायर प्लस c/x+c, ऐसे करते थे। बट यहां पर मैं आपको इजी मेथड बताता हूं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको भी एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लेता हूं मेरे पास x ऑफ s दिया हुआ है, दैट इज 12/s+2 का होल स्क्वायर
इंटू एस प्लस 4। बेटा ध्यान से देखेंगे, ये मेथड रेजिड्यू मेथड है, बहुत सॉलिड मेथड है, कभी गलती नहीं होगी। जिस तरह से मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको भी एक्स ऑफ एस को लिखना है। सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर, तो इसको लिख दूं k1 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट। इसके बाद क्या लिखूंगा, k2 अपॉन एस प्लस 2, उसके बाद k3 अपॉन एस प्लस 4, ऐसे लिख, ठीक है ना। रिपीटेड पोल्स का मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहां पर s प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो इसका मतलब हुआ s प्लस 2 इंटू एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू -2 कॉमा -2, दैट मीन्स -2 पे यू हैव गॉट 2 पोल्स। तो रिपीटेड पोल्स का मतलब हुआ जब एक ही पॉइंट पे 2 पोल्स हो तो -2 पे 2 बार पोल है, ठीक है। तो ये रिपीटेड पोल का कंडीशन हुआ। यहां पर -2 पे रिपीटेड पोल है और s इज इक्वल टू -4 पे एक सिंपल पोल है, सिंपल पोल है, ठीक है ना। सिंपल पोल मतलब पुराना मेथड। तो k3 तो बच्चों मैं वैसे ही निकालूंगा जैसे मैंने पहले निकाला था। k3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, k3 विल बी s प्लस 4 इंटू एक्स ऑफ s एट s इज इक्वल टू -4। तो सबसे पहले मैं k3 निकाल देता हूं, तो दिस इज s प्लस 4 इंटू एक्स ऑफ s वॉज 12 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड s प्लस 4 एट s is equal to -4। तो this gets cancelled, this gets cancelled, -2 रखूंगा यहां पर, अगर -4 रखूंगा तो -4 प्लस 2 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4, तो दिस इज 12/4 यानी कि 3। तो यहां से मेरे को k3 का वैल्यू मिल गया है 3, ठीक है ना। वेरी सिंपल, k3 का वैल्यू मिल गया 3। अब देखो k1 कैसे निकाल रहा हूं, k1 भी बिल्कुल वैसे ही निकालूंगा। देखो मेथड ध्यान से देखना, जिस ऑर्डर में कर रहा हूं उसी ऑर्डर में आप भी याद रखना, आप भी वैसे ही करना। k1 कैसे निकालूंगा, s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ s इंटू s एट s इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो सिंपल है, s प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां पे 12 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 4 at s is equal to -2। तो this gets cancelled, s is equal to -2 पे आपका क्या मिल जाएगा, यहां पे you will get 6। तो k1 का वैल्यू हो गया 6। अब बच्चा पार्टी आप क्या करोगे, अगर आप k2 भी ऐसे ही निकालते जैसे मैंने बताया है तो k2 में आप क्या करते, k2 में आप क्या करते, s प्लस 2 करते, ठीक है ना, x ऑफ s करते एट s इज इक्वल टू -2। अब यहां पर देखो जब आप x ऑफ, ध्यान से देखिएगा ये हमें करना नहीं है, ये गलत मेथड है, पहले आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूजन कहां होता है। अगर आप x ऑफ s का वैल्यू निकालो तो 12 s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 4 इंटू s इज इक्वल टू -2। तो एक स्क्वायर तो कट गया, लेकिन जब आप s इज इक्वल टू -2 यहां रखोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स इस मेथड से k2 नहीं निकल सकता, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में भी इस मेथड से आप b का वैल्यू नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स k2 निकालने के लिए मेरे पास कोई और मेथडोलॉजी होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा वो मेथड क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। k2 की वैल्यू होगी, थंब रूल है ये, ds ऑफ s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ s एट s इज इक्वल टू -2। मतलब जैसे आपने k1 निकाला था, k1 आपका जो भी आया था k1 का वैल्यू, उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करिए और फिर वैल्यू निकालिए s इज इक्वल टू -2 पे। तो k1 सॉल्व करने के बाद आपका क्या आया था, यहां से अगर आप देखो, यहां से k1 का वैल्यू आया था 12 डिवाइडेड बाई s प्लस 4। दिस वॉज द वैल्यू ऑफ k1। तो k2 कितना आएगा, ds ऑफ 12 डिवाइडेड बाई s प्लस 4। और इस ds का वैल्यू आपने निकालना है किस पे, s इज इक्वल टू -2 पे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देख लो, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, मेक श्योर आप ये गलती ना करें। k2 कैसे निकालना है ये सबको देखना है।
ऐसे ही अगर K3 होता, भाई यहां पर तो K2 पे ही खेल खत्म हो रहा है, अगर K3 होता चलिए पहले K2 निकालिए, फिर देखता हूं, बताता हूं कि K3 कैसे निकालेंगे। अब आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 12 s प्लस 4 की पावर -1 का ddS कहां पे? s इज इक्वल टू -2 पे। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा? 12 यहां पर आ जाएगा -1, यहां पे आ जाएगा s प्लस 4 का होल स्क्वायर, s इज इक्वल टू -2, राइट। तो ऊपर आ गया बच्चों -12, नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया बच्चों -2 प्लस 4 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो दिस इज -3। तो यहां से आपको K2 का वैल्यू मिल गया -3। क्लियर है? समझ में आया? यहां पर K2 का वैल्यू मिल गया -3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड पोल्स में ही गलती होती है। अगर रिपीटेड पोल्स आप बना ले गए तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है ना। अब वंस यू हैव रिटन दीज वैल्यूज, अब आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आप सीधे सीधे वैल्यूज रखिए एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। अगर बच्चों आपको याद हो तो जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि एक प्रॉपर्टी है जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यहां पर हम इनवर्स निकालेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, या इसको मैं हाईलाइट करके लिखता हूं ताकि आपको ये एक बार याद आ जाए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एक्स टी, इसका क्या वैल्यू था? -d/ds ऑफ x ऑफ s, ठीक। अब इसी का इनवर्स फॉर्म मुझे यहां पर यूज करना है। तो अगर आप देखें जो आपने वैल्यू निकाली है, मैं एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूं। K1 का वैल्यू आपने निकाला है, K1 is 6, K2 is -3, K1 is 6, K2 is -3, and your K3 is 3. K3 is 3. K3 is 3. तो x of s को कैसे लिखूंगा? x of s will be, x of s is K1 was 6, तो 6 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर। K2 is -3, तो -3 अपॉन s प्लस 2, एंड दिस K3 is 3, तो 3 अपॉन, it was I guess s plus, this was s plus 4, s plus 4, s plus 4, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, xt will be inverse Laplace of 6 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास, -3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2, प्लस 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 4, राइट। अब जरा देखिए, इसका लाप्लास मुझे मालूम है -3 e टू द पावर -2t, इसका लाप्लास मुझे मालूम है 3 e टू द पावर -4t, बट इसका लाप्लास क्या होगा? अब देखिए, e टू द पावर 2t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहा होगा 1 अपॉन s प्लस 2, तो t इंटू e टू द पावर 2t, इसका लाप्लास क्या रहेगा? -d/ds ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2। अब देखो ये चीज बच्चों जब आपको बहुत प्रैक्टिस होगी तभी क्लिक करेगा, बट वैसे थंब रूल है, नीचे जिसका स्क्वायर है, अगर स्क्वायर आ गया नीचे इनवर्स में, तो मतलब डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है और t का मल्टीप्लाई होना ही है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके आप देखो, दिस विल बी 1 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर, चेक कर लीजिए। तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं तो मुझे उल्टा मिल जाना चाहिए, t e टू द पावर 2t, तो यहां क्या आना चाहिए? 6t e टू द पावर -2t, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ xt। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सभी क्वेश्चंस में यही करना है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे आपको सेम लॉजिक लगाना है, ठीक है ना। अगर s प्लस 3 हो जाए, वैसे s प्लस पावर 3 के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं,
स्क्वायर तक बनते हैं और सब में यही लॉजिक है। आप कोई भी बुक उठाइए, कितने भी क्वेश्चंस देख लीजिए, सेम लॉजिक है। क्लियर है ना? चलो अब तीसरा और सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या हो अगर मेरा ट्रांसफर फंक्शन या एक्स ऑफ एस कॉम्प्लेक्स रूट्स रखे? चलिए चेक करते हैं। चलिए बच्चों, नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड केस। थर्ड केस है बच्चों हमारा रिपीटेड या कॉम्प्लेक्स रूट्स का। कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब आपका डिनोमिनेटर जो बन रहा है उसका कोई हम प्रॉपर फैक्टर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स रूट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सबसे कंफ्यूजिंग केस भी है। तो इसमें मैं दो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, दोनों अलग अलग तरीके के। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो ये हो गया s+8 और नीचे मेरा हो गया s² प्लस 4s+13। अब डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ s+8 एंड इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं s+2 का होल स्क्वायर प्लस 9। देखिए अब लॉजिक ये है, मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे दो फॉर्मूले मालूम है, s/s² प्लस a²। इसका इनवर्स लाप्लास मालूम है मुझे cos 80, ठीक। ऐसे ही a/s² प्लस a², इसका इनवर्स लाप्लास मुझे मालूम है sin 80, ठीक है ना? तो मैं ये दोनों फॉर्मूले ही कोशिश करूंगा कि यहां पर लगे, ठीक। चलो अब देखो, x ऑफ s मेरा हो गया, दिस इज 2 को मैंने बाहर कर दिया। अब यहां पर देखिए s+8 को मैं ले सकता हूं s+2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ s+2 डिवाइडेड बाई s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाई s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना? ध्यान से देखिए क्या किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मैं इसको कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊं जिसका इनवर्स मुझे मालूम हो। यहां पर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहां पर फिर से देखिए, अभी मैं सेकेंड टर्म को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूं। इसको लिख सकता हूं s+2 डिवाइडेड बाई s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं 6 को अगर 3 इंटू 2 लिख दूं और 2 यहां आ जाए तो ये हो जाएगा 3/s+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। फिर से देखिए क्या किया है, यहां से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद दिस इज s+8, यहां पर इसको मैंने क्या बना दिया s+2 का होल स्क्वायर प्लस 9। इसको ओपन करिए s+2 का होल स्क्वायर आएगा s² प्लस 4s प्लस 4, 9 प्लस 4 इज 13, तो मुझे यही वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब देखो यहां पर 3 का स्क्वायर है और यहां पर s+2 है, तो सबसे पहले मैं s+2 को एक साथ कर दूं। s+2 को एक साथ किया तो 8 को मैंने 2 प्लस 6 लिखा, s+2 को एक इसके साथ बना दिया। अब देखिए जब मैं xt निकालूंगा, xt इज लाप्लास इनवर्स ऑफ x ऑफ s। अब ध्यान से जरा देखिए पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, देखिए 2, ये 2 तो एज इट इज यहां लिख दिया। अब दिस इज s/s² प्लस a², ठीक है ना? तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? cos 80 का, लेकिन s की जगह s+2 है, यानी कि यहां पर e⁻⁻²t। अब देखिए यहां पर मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। मैंने पहले भी बोला था प्रॉपर्टी वाला लेक्चर बिल्कुल थॉरली आपको पता होना चाहिए राइट। चलिए यहां पर देखिए दिस इज a/s² प्लस a², तो ये बच्चों किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ? 4 पहले एज इट इज लिख दूं, ये हुआ sin 80, लेकिन यहां पर 2 था तो ये हो गया e⁻⁻²t। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अगर आप ब्रेक कर पा रहे हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो एट टाइम्स द क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है ना? चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, इसमें सारे कंडीशंस एक साथ आ जाएंगे, इसमें सिंपल रूट्स भी होगा और कॉम्प्लेक्स रूट भी होगा। तो लेट मी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। x ऑफ s इज 2s प्लस 1
divided by s plus 1 and this is s square plus 2s plus 5। चलो देखते हैं अब यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स रूट इंडिविजुअल होता तो आई कुड हैव इजिली डन इट, जैसे मैंने अभी पुराना क्वेश्चन किया, बट यहां पे मुझे कन्वेंशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। k1 अपॉन s प्लस 1 प्लस, अब जरा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 को देखिए, व्हाट आर दी वैल्यूज या रूट, s इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट? ऐसा ही वैल्यू आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो s इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 16 इज 4i डिवाइडेड बाई 2, तो s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 2i या i, ठीक है ना। इसके रूट्स क्या क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2j एंड s इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2j। तो जब मैं रूट्स को वैसे लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, तो मैं क्या लिखूंगा, k2 अपॉन s प्लस 1 माइनस 2j प्लस, यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर s प्लस 1 प्लस 2j, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और देखिए, अगर ये k2 है तो ये k2 स्टार ही आएगा, ठीक है ना, ये k2 स्टार ही आएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में ही होते हैं। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये प्रोसीजर ही है इसका, जब आप कॉम्प्लेक्स रूट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करते हो तो यू गेट द सेम वेरी वैल्यूज, ठीक है ना। अब देखो k1 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, कन्वेंशनल तरीके से। k1 कितना आएगा, s प्लस 1 x ऑफ s एट s इज इक्वल टू माइनस 1, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, k1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/4। आप निकाल सकते हो, बाय नाउ आई गेस यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइंड इट, ठीक है ना। अब k2 का वैल्यू देखिए कैसा आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k2, k2 विल बी s प्लस 1 माइनस 2j इंटू x ऑफ s एट s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2j। देखो k2 और k3 में से अगर आपने एक वैल्यू निकाल ली है तो दूसरी वैल्यू एज इट इज डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, x ऑफ s को लिख लीजिए 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 एंड s प्लस 1 माइनस 2j एंड s प्लस 1 प्लस 2j, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए s प्लस 1 माइनस 2j से, तो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, तो यू गेट, मैं बगल में सॉल्व कर रहा हूं फॉर योर कन्वीनियंस, s प्लस 1 एंड s प्लस 1 प्लस 2j। अब यहां पर आपको पुट करना है s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2j। अब यहीं पर देखिए j ऑपरेटर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने j ऑपरेटर ध्यान से नहीं समझा है तो अगेन आप ये क्वेश्चन में फंस जाओगे। लॉजिक आपको पता होगा बट कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो हर चीज नेटवर्क में लिंक्ड है, आप कोई भी लेक्चर कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं कर सकते। s की वैल्यू यहां रखेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद सीधे ये आएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं 1/8 माइनस j 1/2। आई होप अब आप ये सब कर लोगे, ये सब पहले मैं बता चुका हूं। अच्छा, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस। k3 क्या आएगा, k3 विल बी k2 का कॉम्प्लेक्स, तो k2 का कॉम्प्लेक्स मींस 1/8 प्लस j इंटू 1/2। ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को और इस पार्ट को, मैंने डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है, दे एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। अब बच्चों k1 k2 और k3 की वैल्यू रखनी है मुझे, तो x ऑफ s विल बी, k1 is minus 1/4, this is s plus 1. What is k2? k2 is बच्चों 1/8 minus j by 2 and this is s plus 1 minus 2j and this is 1/8 plus j by 2, this is s plus 1 plus 2j. So this is x of s. From x of s I have to find xt. तो देखिए इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा,
ये मैं मान लेता हूं, आपको अब तक पता चल गया होगा, दिस इज -1/4 e टू द पावर -t। ठीक, इन दोनों को देखिए कैसे कर रहा हूं, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा मुझे साइन या कॉस बनाना है, तो क्या करूं, 1/8 अगर न्यूमरेटर से बाहर ले लूं तो ऊपर क्या बचेगा, 1 - 4j, यहां पर s + 1 - 2j प्लस 1 + 4j, यहां पर s + 1 + 2j। ठीक है ना। अब एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम क्या ले रहा हूं बच्चों, 1/8 तो एज इट इज लिख दीजिए। एलसीएम में मैं ले रहा हूं s + 1 इंटू -2j, ये एक साइड, एंड s + 1 + 2j। देखिए कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पेयर इसलिए बनाया ताकि a² - b² का फॉर्मूला मैं लगा सकूं। अब देखिए a - b इंटू a + b, तो आगे जाके ये a² - b² बन जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा, 1 - 4j, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा s + 1 + 2j प्लस 1 + 4j, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, s + 1 - 2j। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा, या मल्टीप्लाई कर ही लेता हूं, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। फटाफट देखिए, s + 1 + 2j -4sj -4j, ये आएगा -8j², तो j² -1 हो जाएगा, तो +8 प्लस s + 1 - 2j प्लस 4sj प्लस 4j प्लस 8, ये न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ जाएगा, a² - b², मैं सीधे लिख रहा हूं, a² - b² करूंगा तो -j² इंटू 4 आएगा, तो वो j² माइनस हो जाएगा, तो यहां प्लस हो जाएगा। राइट। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस गेट्स कैंसिल्ड, दिस गेट्स कैंसिल्ड। राइट, फाइन, 2j कैंसिल्स, 2j कैंसिल्स। तो अब क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, जरा सा अगर आपने कैलकुलेशन में प्रॉब्लम किया, मिस्टेक किया, तो क्वेश्चन गलत हो जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दिस विल बी 2s + 18, दिस विल बी 2s + 18, एंड नीचे यू विल गेट s + 1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब ऊपर से 2 कॉमन लिया और नीचे काट दिया, तो ये बचा 1/4। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पुराना क्वेश्चन था, अभी जो मैं करके आया वही क्वेश्चन बन गया बच्चों। इसको कैसे लिख सकता हूं, 1/4 इसको अलग करूं, s + 1 को अलग करूं, प्लस 8 को अलग करूं, तो दिस विल बी s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी 1/4, दिस विल बी s + 1 डिवाइडेड बाई s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये 1/4 जब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए बहुत आसान हो गया। दिस इज, अब सीधे अगर इनवर्स ले लूं, अगर यहां से मैं इनवर्स ले लूं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहां पर क्या बचा, 1/4, ये किसका है, s/s² + a², दिस इज cos 2t। एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती ना हो गई हो बच्चों। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 4, दिस इज 2, फाइन, दिस इज 4, दिस इज 2, क्लियर। अच्छा, यहां पर s + 1 है, तो इसकी वजह से यहां पर e टू द पावर -t आएगा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। यहां पर देखिए a/s² + a², ठीक, तो e टू द पावर -t आया इस s + 1 के लिए, यहां पर आ गया sin 2t। ठीक, अब देखिए पूरा आंसर आपका क्या आ गया, x ऑफ t। सबसे पहले आपका क्या आया था, 1/4 e टू द पावर -t प्लस 1/4 e टू द पावर -t cos 2t प्लस e टू द पावर -t sin 2t। क्लियर। तो दिस वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया है। सभी क्वेश्चंस इसी तरीके के होंगे, मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए हैं। अगर केवल कॉम्प्लेक्स पोल है या कॉम्प्लेक्स पोल एक सिंपल पोल के साथ है, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। स्पेसिफिकली ये थर्ड पार्ट बच्चों कॉम्प्लेक्स पोल वाला एक बार फिर से पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना, सभी क्वेश्चंस इसी मेथड से होंगे। ठीक है ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
आई होप सभी को समझ में आया होगा. In case you find the content worthy enough, अगर आपको समझ में आया, like the lecture, subscribe the channel, promote it amongst your friends so that all of your friends, all of your colleagues get benefited. Clear है ना? As I always say, till the next lecture, stay safe, stay healthy, and most importantly, study well.